الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله المولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے مقصود منزل ملتا ہے۔ دیکھیے، دینداروں کے اندر آپس میں تعلقات اور خوش سلوکی باقی رہنے کے لیے صرف دینداری ہی ضروری ہے۔ مدرسے کے طالب علم ہو اور اساتذہ کرام ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی اسکولز وغیرہ کے کوئی بھی اساتذہ ہو، طالب علم ہو یا کوئی پریوار کے گھر کے رہنے والے ہو، جتنے بھی ہیں، چاہے ادارہ کے ہو چاہے گھر کے ہو، سب اگر ایک ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو سب کو ایک ہو کر کے رہنا پڑے گا، تب اس کے اندر طاقت ہے اور پھر خوشحالی آئے گی، ورنہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی وجہ سے ایک باپ نے مرنے سے پہلے اپنے 5 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور یہ ڈنڈا بلوایا ہے 5، اور پھر 5 کو اکٹھا کر کے ایک ایک کو دیا ہے، بتایا کہ تم اس کو توڑو، تو کسی نے توڑ نہیں سکا، اور پھر ایک ایک کو الگ الگ کر کے دیا، تو جن کو بھی ایک دیا اس نے اس کو آسانی سے توڑ دیا۔ باپ نے مرنے سے پہلے لڑکوں کو بالکل پریکٹیکل میں یہ دکھوایا ہے کہ دیکھو، تم زندگی کے اندر ایک رہ کر کے زندگی بسر کرو گے تو پھر تم کو کوئی توڑ نہیں سکتا، موڑ نہیں سکتا، اور تم کو ہلاک نہیں کر سکتا، اور تم الگ الگ ہو کر بڑھ جاؤ گے اور اکیلا رہ جاؤ گے تو پھر آسانی سے کوئی بھی تم کو ادھر سے ادھر کر دے گا، ہلاک کر دے گا، مار دے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ تو اس نے مرنے سے پہلے یہ نصیحت اپنے بیٹوں کو کر کے گئے۔ کتاب کے اندر اس کا واقعہ ہے اور یہ بالکل سچ واقعہ۔ عربی نفحات الادب کر کے کتاب ہے، اس نفحات الادب کتاب کے اندر ہے، میں نے پڑھایا ہے چند سال بھی اس میں۔ اور دوسرے ایک سننے والے نے کہا کہ جو بک ہے اسکولز کے اندر جو بکس ہوتے ہیں اس بکس کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، تو اس نے سننے کے بعد بتایا کتاب کے اندر بھی وہی واقعہ بتایا کہ نہیں؟ میں نے کہا کتاب کے اندر بھی وہی واقعہ آیا ہے، اور بالکل جس نے دیا ہے اس کے نام کے ساتھ آیا ہے، تو پھر اسی وجہ سے یہ بالکل واقعی واقعہ ہے، اس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں، اور بالکل یہ موافق ہیں، عمل کرنے کے لائق ہیں۔ اسی وجہ سے ایک رہنے سے، اور ایک رہنے کے لیے دینداری کو اپنانا پڑے گا، ایک رہنے کے لیے دینداری کو اپنانا پڑے گا، دینداری کے علاوہ کوئی جا کر کے ایک نہیں رہ سکتا۔ طالب علم ہو مدرسے کے اندر چند، لیکن دینداری کو باقی رکھنا پڑے گا۔ میری طرف دیکھو، دینداری کیا ہے؟ چوری نہیں کرنا، یہ دینداری ہے نا؟ چوری کرنے سے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پیر کاٹ دیا جائے گا، مسلح بنا دیا جائے گا، ہاتھ پیر سب کٹنے کے بعد پھر تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے، اس کو تم کو ڈرانا ہے، چوری نہیں کرو گے، دینداری اپناؤ گے تو پھر تمہارے کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہے گا کہ میرا یہ سامان چوری کر لیا، تو پھر کوئی کسی پر غصہ نہیں ہوگا، خوشحال رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ کوئی کسی کو ناحق کچھ گالی نہیں دینا ہے، بس سمجھ میں یہ فسق و فجوری ہے، یہ گناہ ہے، تو پھر دینا نہیں ہے، یہ دینداری ہے۔ دو گے تو پھر دینداری کے خلاف کیا ہے، وہ پھر تم کو مارے گا، غصہ ہوگا، تم اس کو مارو گے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا، بگڑ جائے گا نہیں؟ یہ دینداری نہیں ہونے کی وجہ سے، دینداری ہوتا تو پھر یہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تم نے کسی کو مار دیا،
किसी को कुछ कह दिया, किसी की जगह में लेट गए उसकी इजाज़त के बगैर, फिर तुम किसी की जगह में बैठना भी नहीं। एक शख्स यहाँ बैठता है तो फिर बाहर गया और पता चलता है कि ये आकर के यहाँ बैठेगा, तो तुमको इसकी जगह में बैठना नहीं है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। किसी के बिस्तर के अंदर तुम्हारे लिए सोना उसकी इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है, तुम ये जा कर के सो गए तो फिर ये दीनदारी के ख़िलाफ़ किए है, तो फिर वो तुम पर गुस्सा हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? दीनदारी है तो फिर सब एक रह सकते हैं, इसके अलावा नहीं। देखो बताए हैं कि कपड़े के 2 टुकड़े को एक करना है तो किससे, ये जो ऐसे कानून होता है वगैरह होता है, तो इससे 2 कपड़े के टुकड़े को एक करते हैं कि नहीं करते? सिलाई के ज़रिया। और लकड़ी के 2 टुकड़े के एक करना है तो लोहे वगैरह के ज़रिए करते हैं कि नहीं करते? और उसके अलावा बाकी चीज़ों को जो अलग अलग है इकट्ठा करने के लिए ये सब अल्लाह ने रख दिया है। इससे आप 2 अलग अलग चीज़ को एक कर सकते हैं। और मुसलमान इंसान अलग अलग बांटे हुए एक होने के लिए दीनदारी है उनके अंदर, दीनदारी उनके अंदर लोहे हैं, दीनदारी उनके अंदर ऊन है, दीनदारी उनके अंदर कील है कि वो जाकर के इकट्ठा करके देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसके अलावा कोई एक नहीं रह सकता, ना कोई फैमिली वाले, ना कोई स्कूल वाले, ना कोई मदरसे वाले, ना कोई भी इकट्ठा नहीं रह सकता। दीनदारी नहीं है तो फिर वो इससे बेजार, वो इससे बेजार, वो इससे अलग, वो इससे अलग। तुम जाकर के किसी की गिबत करोगे तो ये दीनदारी नहीं है, तो फिर वो तुम पर नाराज़ हो जाएगा, तो पिटने लगेगा और फिर कुछ कहने लगेगा, तो फिर ये भी तुम्हारी गिबत करने लगेगा, तो फिर मामला बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये सब दीनदारी है, सब दीनदारी है। बैठने में, उठने में, लेटने में, रहने में, पढ़ने में, खाने में, पीने में, सब चीज़ के अंदर दीनदारी अपनाओ, उसी को अखलाक कहा जाता है। और फिर किसी के अंदर कोई झगड़ा नहीं, सब भाई भाई होकर के रहोगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, उस पर तुम्हारा अमल हो जाए। बात समझ में आएगी नहीं? दीन की रस्सी को तुम मजबूती से थाम लोगे, कोई जाकर के बंटवारा नहीं है, और फिर इसी के अंदर तुम्हारी कामयाबी आकर के लटक जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? उसी वजह से दीनदारी अपनाना। घर में जाए फैमिली वालों के साथ फिर भी दीनदारी के साथ रहे, उसी को अखलाक कहा गया, हुस्न अखलाक कहा गया। बात समझ में? मदरसे में आए असतिज़ा के साथ जैसे ही सुलूक करना है, उसको अदब देना है। असतिज़ा के बारे में तो पहले बताएं कि नहीं, उसको अदब देना है, माँ बाप को अदब देना है। हदीस से, कुरान में बेशुमार उसकी फजीलतें हैं, उसमें जाए तो फिर दूसरे मौजू में चले जाएंगे। आप इसको अपनाओ तो दीनदारी है, अपनाओगे नहीं तो फिर दीनदारी के खिलाफ के फिर असतिज़ा पिटाई करे। बात समझ में आई? मतलब पिटाई क्यों करे? तुम आए हैं दूसरी जगह मेहमान बन करके, तुमको अच्छी नज़र से देखना है, तुमको इल्म देना है, वही तो कामयाबी है। उनके लिए आगे का फल क्या है, कामयाबी क्या है, उनके लिए उनके आगे की खेती क्या है? तुम है, तुमको कुछ सिखाएगा, तुम दूसरे को सिखाओगे, उसका ज़ख़ीरा तो आखिरात में बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर तुम जा कर के उनकी नामाफ़ी, कोई जा कर के नामाफ़ी की बात कर दिए, सुलूक कर दिया, तो फिर जा कर के वो तुमको पीटता है, तो तुम फिर नाराज़ हो जाते हो। फिर उनका पीटना ये जा कर के हर वक्त दीन के ख़िलाफ़ नहीं होता है। अदब दिलाने के लिए कभी जा कर के थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। तो तुम्हारे जो अखलाक हैं, तुम्हारे जो सुलूक हुआ, जो बर्ताव तुमने उनके साथ किया है, वो दीनदारी के ख़िलाफ़, उसी वजह से तुम्हारे दरमियान ये एक और जो एकता और जो कि इत्तेफाक वो नहीं रहा। बात समझ में आई कि नहीं? तो दीनदारी अपनाना है, असतिज़ा के साथ भी, तलबे के साथ भी, माँ बाप के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी, पड़ोस के साथ भी, और साथियों के साथ भी। बात समझ में आएगी? बताते हैं, देखो सब रिश्ता एक जगह जाकर के ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होता है कि नहीं? ससुराली रिश्ता हो तो एक हाथ में जाकर के ख़त्म हो जाएगा। नसबी रिश्ता हो, नसबी माँ बाप, भाई बहन वगैरह है, एक हाथ में जाकर के ख़त्म हो जाएंगे कि नहीं? एक हाथ में जाकर के भाई वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ तुम आए हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में से कोई है, भाई नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं, तो फिर एक हाथ में जाकर के नसबी रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है, एक हाथ में जाकर के रज़ाई रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है,
एक हाथ में जाकर ससुराली रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है, और एक हाथ में जाकर तुम्हारी जो साथी होने की जो निस्बतें हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक रिश्ता वो है जो दीन का रिश्ता है, वो हर जगह हर वक्त मौजूद रहता है। तुम यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान वाले तुमको जगह देंगे, गले लगाएंगे, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे, अदब देंगे। क्यों? दीनदारी की खातिर। तुम मुसलमान हो, तुम उनके साथ मेहमान बन के गए, तो फिर तुमको मोहब्बत से देखते हैं, गले से लगाते हैं। यहाँ से कोई भी किसी भी जगह में जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे लंदन जाओ, चाहे अफ्रीका जाओ, चाहे यूरोप जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश, तो जहाँ भी जाओ, यहाँ जाने के बाद आप अमेरिका में भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मुसलमान बेशुमारे हैं। यहाँ जाने के बाद हमारे बुज़ुर्गों को वो इस्तकबाल करते हैं, बयानें कराते हैं, और फिर जो भी हमारे यहाँ आने के बाद, बड़े बड़े बुज़ुर्ग बाहर से आने के बाद हमारे यहाँ जो जूस और खरूश के साथ जो किया जाता है, ऐसा ही वो लोग भी करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन अमेरिका, यहाँ सुप्रीम पावर उसका है, लेकिन फिर भी मुसलमान यहाँ मस्जिद और मदरसे और इस्लाम के साथ बिल्कुल अमन और शांति के साथ यहाँ जिंदा बसर कर रहे हैं, और जाने के बाद एक दूसरे को प्यार करते हैं दीन की निस्बत से। बात समझ में आई? तो दीन की निस्बत, दीन का जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। जहाँ जाओ वही रिश्ता है, और वही रिश्ता और वही दीनदारी की वजह से, इस्लाम की वजह से वो तुमको मोहब्बत करता है, अपनाता है, अपने घर में जगह देता है, खाना पिलाता है, तुमसे बयान करवाते हैं, दिया तोहफा भी देते हैं, इस्तेमाल करके फिर लेते हैं, और फिर इस्तेमाल करके वापस भी देते हैं। बात समझ में आएगी? ये दीनदारी है, ये इस्लाम। इसी वजह से उसको अपनाना है, थामना है मजबूती से। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन तो दीन इस्लामी है, उसी को बताया है कि मजबूती से थामो, मजबूती से पकड़ो, जाने ना दो, छुड़ने ना दो, तो फिर तुम्हारे अंदर दीनदारी रहेगी। हाँ, दीनदारी खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, उसमें दीनदारी जो है उसको अपनाना है। दीनदारी क्या है? सब में जो दुआएं हैं, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नाम से शुरू हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके अंदर दीनदारी अपनाने की तौफीक दे देंगे। बात समझ में आएगी? खाना खाते हो, ख़त्म करते हो, सोते हो, उठते हो, पढ़ना शुरू करते हो, ख़त्म करते हो, और इस्तिंजे में जाते हो, आते हो, और गाड़ी में चढ़ते हो, घर से निकलते हो, हर वक्त के जो दुआएं हैं, हर वक्त की मस्जिद में दाखिल होते हो, निकलते हो, वो सब दुआएं अपनाओ, अल्लाह के नाम से शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला दीनदारी से उस काम को संभालने की तौफीक अता फरमाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? अमल करोगे? बयान बड़ा लग से नहीं।